اسٹوڈیو سری نگر ہے۔ اب آپ خبریں سنیے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی صدارت میں منعقدہ انتظامی کونسل کی میٹنگ کے دوران لیے گئے کئی اہم فیصلے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے عنقریب ہی لائے گی ایک قانون۔ وزیر خارجہ اور وزیر زراعت نے باجرہ کی اہمیت کو کیا اجاگر، کہا حکومت باجرے کی پیداوار اور کھپت کو بڑھانے کے لیے مشن موڈ کے تحت کر رہی ہے کام۔ اور سکھ مذہب کے 9ویں گرو تیگ بہادر کا شہیدی دیوس آج۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی صدارت میں جموں میں انتظامی کونسل کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں گرام پنچایتوں، بلاک سمیتیوں اور ضلع پریشدوں کو انتظامی منظوری دینے کی اختیارات کو منظوری دی گئی، جسے پنچایتوں کے اپنے وسائل سے پورا کیا جائے گا۔ میٹنگ میں لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر راجیو رائے بھٹناگر اور چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے شرکت کی۔ حکومت نے ترقیاتی عمل میں پی آر آئیز کی شمولیت کو فروغ دینے کے لیے پنچایتی راج اداروں کو مالی طور پر مزید بااختیار بنایا ہے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں گرام پنچایتوں کو 1 سے 5 لاکھ روپے تک کے کاموں کی انتظامی کونسل کو منظوری دینے کا اختیار دیا گیا ہے۔ بلاک سمیتیوں کو 5 سے 20 لاکھ روپے تک کے کاموں کی انتظامی منظوری دینے کے اختیارات دیے گئے ہیں۔ ضلع پریشد کے پاس اب 1 کروڑ روپے تک کی انتظامی منظوری دینے کے اختیارات ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت میں منعقدہ انتظامی کونسل نے NFSA اسکیم کے تحت ماہانہ بنیادوں پر فیئر پرائس شاپ ڈیلرز کے حق میں ایڈوانس ادائیگیوں کی تجویز کو منظوری دی۔ انتظامی کونسل نے FPS ڈیلرز کے مارجن کے حساب سے 75% مرکزی حصے کی ایڈوانس ادائیگیوں کو NFSA اسکیم کے تحت ماہانہ بنیادوں پر اناج کوٹا میں سے منظور کیا۔ فیئر پرائس شاپ ڈیلرز 180 روپے فی کوئنٹل کے حساب سے کمیشن کی مانگ کر رہے تھے۔ چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے سماجی بہبود محکمہ جموں کشمیر سے قائم کردہ بیواؤں، یتیموں، جسمانی طور خاص اور معمر افراد ملیٹنسی کے متاثرین کی ریہیبلیٹیشن کونسل کی میٹنگ کی صدارت کی۔ چیف سیکرٹری نے لیفٹیننٹ گورنر کی ہدایت کے مطابق تمام اسپیشلی ایبلڈ پرسنز میں ٹرائی سائیکل تقسیم کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے ہدایت دی کہ وطن کو جانو پروگرام کے تحت ملک کے مختلف حصوں میں تمام نوجوانوں کو ہر طرح سے سہولت فراہم کی جائے اور ہر شہر میں ان کے قیام کو آرام دہ بنایا جائے۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ 6,800 مستفید افراد کی کوریج کے لیے 2022-23 کے لیے 8 کروڑ 35 لاکھ روپے کا ایکشن پلان مرتب کیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے پرگتی میدان نئی دلی میں 41ویں انڈین بین الاقوامی تجارتی میلے میں جموں کشمیر کے دن کو منانے کے لیے تقریب کا آغاز کیا۔ تقریب کا انعقاد UT کے ثقافتی پروگرام کے ذریعے کیا گیا۔ ڈاکٹر مہتا، جو اس موقع پر مہمان خصوصی تھے، کو JK پیویلین کا تفصیلی دورہ کرایا گیا، جہاں نمائش کے لیے مختلف سٹال لگائے گئے تھے۔ میلے میں زائرین کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ڈاکٹر مہتا نے ان پر زور دیا کہ وہ جموں کشمیر کا دورہ کریں، کیونکہ اس خطے میں مرکز کے زیر انتظام علاقے کی لمبائی اور چوڑائی میں متعدد قدرتی مقامات موجود ہیں۔ میلہ 14 نومبر کو شروع ہوا اور 27 نومبر کو اختتام پذیر ہوگا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ آج کل کے دور میں کووڈ وبا، آب و ہوا کی تبدیلی اور تنازعات کے تناظر میں باجرہ کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ نئی دلی میں انٹرنیشنل ایئر آف ملیٹس 2023 کی 1 سال طویل تقریبات کا آغاز کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ باجرہ خوراک کی یقینی فراہمی کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی رشتوں کے لیے بھی کافی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ وبا نے دنیا کو یاد دلایا کہ وبائی صورتحال فوڈ سیکیورٹی کو کتنا زخم پہنچا سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بین الاقوامی سطح پر خوراک کی یقینی فراہمی کی طرف خصوصی توجہ دی جانی چاہیے۔ اپنے خطاب میں وزیر زراعت
नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बाजरा के बैन-अ-क़वामी साल की बदौलत बाजरा की ग़िज़ाई अहमियत के बारे में लोगों में बेदारी पैदा होगी। उन्होंने कहा कि बाजरा एक माहौलियात मुआफ़िक फसल है और इससे आसानी से खुश्क साली से मुतासर इलाकों में उगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बाजरा की पैदावार और खपत बढ़ाने के लिए उनकी वजारत मिशन मोड के तहत काम कर रही है। इस तकरीब में भारत में 60 ममालिक के सफीरों और हाई कमिश्नरों ने भी शिरकत की। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में सर्विसेज और तिजारत के माहिरीन के साथ बजट 2023 के पहले की 5वीं मुशावरती मीटिंग मुनक़द की। मीटिंग में खजाने के वज़राए मुमलकत पंकज चौधरी और डॉक्टर भगवत कारद ने शिरकत की। इस मौके पर खजाने के सेक्रेटरी डॉक्टर टीवी सोमनाथन और दीगर कई आला अफसरान भी मौजूद थे। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि मरकजी हुकूमत अनकरीब ही डिजिटल मीडिया में माकूलियत लाने के लिए एक कानून लाएगी। जयपुर में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया के साथ वाबस्ता सहाफियों की भी एक्रीडेशन अमल में लाई जाएगी। उन्होंने मीडिया से अपील की कि वो जिम्मेदारी के साथ अपना काम निभाएं ताकि डर और तजादात का माहौल कायम न हो सके। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत तिजारत को आसान बनाने और लोगों के मयार हयात में बेहतरी लाने के ज़िम्मन में काम कर रही है और कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में तब्दीली इस सिलसिले की एक कड़ी है। खबरों का यह बुलेटिन ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से नशर किया जा रहा है। सिख मजहब के नौवें गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस आज मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस मौके पर गुरु तेग बहादुर को खराज अकीदत पेश किया। एक पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने धर्म को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बानी दी, जो हमेशा याद रखी जाएगी। उन्होंने उनकी शहादत को इंसानियत के लिए कुर्बानी करार दिया। उन्होंने तमाम शहरियों से अपील की कि वो गुरु तेग बहादुर के इत्तेहाद और भाईचारे की तालीमात को अपनाएं। दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुरु तेग बहादुर जी की यौम शहादत के मौके पर उन्हें खराज अकीदत अदा किया। एक पैगाम में उन्होंने गुरु जी को आपसी भाईचारे और अजीम कुर्बानी की एक अलामत करार दिया। एलजी ने कहा कि अपने आप को आज दिन के तनाजुर में दोबारा वक्फ करके गुरु जी के मसावत, आपसी रवादारी, हमदर्दी और अवामी खिदमत के उसूलों की मुकम्मल तौर से पासदारी करनी चाहिए। राजौरी जिले के सुंदरबनी इलाके में कूड़ा करकट को साइंसी तरीके पर इस्तेमाल में लाकर खाद और प्लास्टिक तैयार करने से एक तरफ माहौलियाती तवाजुन को दुआम हासिल हो रहा है और दूसरी तरफ बीमारियों पर काबू पाने में भी मदद मिली है। सरकार की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि कुछ अरसा पहले इलाके में कूड़ा करकट की बढ़ती मिकदार से लोग काफी परेशान थे। ताहम डीसी राजौरी विकास कुंडल ने म्युनिसिपल काउंसिल सुंदरबनी के अफसरों के हमरा इस मसले पर काबू पाने के लिए मुनासिब इक़दाम किए, जिनके तहत खराब पड़े सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को काबिल कार बनाया गया और अब तमाम इलाकों से कूड़ा करकट जमा करके वहां साइंसी तरीके पर ठिकाने लगाया जाता है। वहां तैयार होने वाली हयातियाती खाद और प्लास्टिक लोगों में बिलतरतीब 12 रुपए और 32 रुपए फी किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। इस तरह से इलाके की जाज़बियत में भी इजाफा हुआ है। भारत ने ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम जजीरे से दरमियानी फासले वाले बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का कामयाब तरबियती तजुर्बा किया। ये तजुर्बा स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमान की सरपरस्ती में किए जाने वाले मामूल के इस्तेमाल के तरबियती तजुर्बात का एक हिस्सा था। वजारत दिफा ने कहा है कि यह तजुर्बा पहले से तयशुदा फासले के लिए किया गया और इस तजुर्बे से निजाम के तमाम फ़आल मयारात की तौसीक हो गई। पाकिस्तान में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को फौज का नया सरबराह मुकर्रर किया गया है। वो 6 साल की मुद्दत के बाद इस महीने सुबुकदोश होने वाले फौजी सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा का ओहदा संभालेंगे। पाकिस्तान की वजारत
वजीर इतलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का चेयरमैन जबकि लेफ्टिनेंट जनरल सईद आसिम मुनीर को फौज का सरबराह तैनात करने का फैसला किया है। टाइगर हाल श्रीनगर में आज मुनक़दा एक अदबी तकरीब के दौरान मरहूम गुलाम हसन बेताब की लिखी गई किताब कथ की रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। तकरीब पर साबिक वजीर मुजफ्फर हुसैन बेग मेहमान खुसूस की हैसियत से मौजूद थे जबकि कल्चरल अकेडमी के साबिक सेक्रेटरी रफीक मसूदी के अलावा कई दीगर अहम शख्सियात ने भी इस तकरीब में शिरकत की। ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर की खबरों का शोबा कैजुअल बुनियादों पर प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट असामियों के लिए उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब करता है। उम्मीदवार का ग्रेजुएट होने के साथ साथ रेडियो प्रोडक्शन में डिप्लोमा याफ्ता होना जरूरी है जबकि वो इस काम में 3 साल का तजुर्बा रखता हो। इलावाजी अंग्रेजी, उर्दू और कश्मीरी जबानों पर दस्तरस होने के अलावा वो बुनियादी कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी जानकार हो। उम्मीदवार की उम्र 21 से 50 बरस के बीच होनी चाहिए। दरखास्तें 25 नवंबर तक दाखिल की जा सकती हैं। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को दरखास्त के हमरा 354 रुपए का SBI बैंक ड्राफ्ट जबकि SC, ST और OBC जुमरे से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों को 266 रुपए का बैंक ड्राफ्ट साथ रखना होगा। मजीद तफसीलात प्रसार भारती की वेबसाइट prasarbharati.gov.in.pb वैकेंसीज पर हासिल की जा सकती है। गांदरबल के जिला तरक्याती कमिश्नर श्याम मीर ने आज बाबा दरियादीन और वंदहामा में पंडित बरादरी के लिए तामीर हो रही ट्रांजिट रिहाइश की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर उन्हें बताया गया कि बाबा दरियादीन में 24 करोड़ रुपए की लागत से 47 कनाल अराजी पर 192 फ्लैट तामीर किए जा रहे हैं जबकि वंदहामा में 23 करोड़ रुपए की लागत से 32 कनाल अराजी पर 192 फ्लैट तामीर किए जा रहे हैं। डीसी ने मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी कि वो तामीराती कामों में तेजी लाएं ताकि इन प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जा सके। पुलवामा के जिला तरक्याती कमिश्नर बसीर हक चौधरी ने गुड गवर्नेंस उमूर की अमल आवरी का एक मीटिंग के दौरान जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बुनियादी मकसद यह है कि लोगों की समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी लाई जा सके। बांडीपोरा के जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने जिला सतह की आधार मॉनिटरिंग कमेटी मीटिंग की सदारत की। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में मजीद मराकज कायम किए जाएंगे ताकि आम लोगों को किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मौसम वादी में पिछले चंद रोज से मौसम खुश्क रहने से अगरचे दिन में हल्की धूप देखने को मिलती है ताहम रात को मतला साफ रहने की वजह से दर्ज हरारत में नुमाया गिरावट देखने को मिल रही है। महकमे मौसमियात ने अगले 10 दिनों के अंदर मौसम खुश रहने की पेशगोई की है। श्रीनगर में महकमे मौसमियात के इंचार्ज डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने शोबा खबर के साथ बात करते हुए कहा कि 4 दिसंबर के बाद ही मौसम में तब्दीली आने का इम्कान है। दरियासना श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14.7 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत -0.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25.7 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 9.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 6.2 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत -9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और करगिल में आज रात का कम से कम दर्जा हरारत -10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।